जो है दे आर जस्ट लाइक ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਬਟ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਟਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾ ਦਈਏ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਮੀਥਾਈਲ ਲਗਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਈਥਾਈਲ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल अगर यूरिया ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰੀਏਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਥਾਈਲ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਸੇਮ ਯੂਰੀਏਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੋਰਮਲ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੋਰਮਲ ਕੈਟਲਿਸਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ in general they are protein molecules with a very high molecular weight ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ optimum temperature ਚਾਹੀਦਾ which is in general body temperature that is around 37 but ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ optimum pH value ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ for their best functioning ਅਗਰ pH value alter ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ due to some eating habits or some other problems in the body ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ enzyme ਦੀ working ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ bad impact ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ kinetics ਨੂੰ study ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ पढ़ी है माइकल मेंटन इक्वेशन और इस स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल अप्लाई करके ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਟੈਡੀ ਸਟੇਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਸੌਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮਾਈਕਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ that is equal to that concentration of substrate for which the speed of the reaction is reduced to the half of the maximum speed और ग्राफ प्लॉट करके असी माइकल कांस्टेंट और उसके नाल ही जो साडे कोल है मैक्सिमम वेलोसिटी असी फाइंड आउट कर सकते हैं सो अगर इस रिलेटेड तुहाडा कोई डाउट है तो बेटा तुसीं मेरे नाल गल करो नहीं तो असी चैप्टर लास्ट टॉपिक जो है वो करांगे हुण तक जिन्ने भी असी रिएक्शन पहले लैबोरेटरी वाले कीते सी वो असी कीते सी होमोजीनियस कैटालिसिस सॉरी हाँ होमोजीनियस कैटालिसिस जिस दे विच reactant and products they are in the same phase या तो in general वो gaseous phase ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ liquid phase ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ gaseous सॉरी solid phase ਦੇ ਵਿੱਚ homogeneous catalysis बहुत ही rare है कि reactants ਤੇ catalyst ਤੇ products ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ solid ਹੋਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ rare ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ heterogeneous catalysis obviously reactants and catalysts they are in the different phase in general is case which jehde catalysts hunde ne they are in general they are in the solid phase and reactants they can be in the gaseous phase or in the liquid phase ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ solid ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ solid ਤਾਂ homogeneous ਹੋ ਜਾਏਗਾ प्लस वो वैसे भी बहुत ही रेयर होंगे है और इन्हों के बेस्ट एग्जाम्पल तुहानू पता है जो भी तुम एग्जाम्पल देनी है तो एल्कीन उस हाइड्रोजन गैस पाई है ना गैशियस फेस हो गया और कैटलिस्ट किहड़ा हुंदा है कोई भी तुसी ट्रांजिशन मैटल कैटलिस्ट पा सकते हो निकल प्लैटिनम प्लैडियम रुथीनियम रोडियम सो ये सारे की है सॉलिड है और सानू ये पता है कि जिहड़े कैटालिस्ट के सरफेस के उपर ये मॉलीक्यूल जाके एडजॉर्ब हो जाते हैं उनके सरफेस के उपर तो इस करके इस कैटालिसिस नूं असीं सरफेस कैटालिसिस करने क्योंकि सरफेस के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्टैक्ट कैटालिसिस और बहुत बारी तुसीं देखिया होना कि रिएक्शन दे विच जिहड़ा कैटालिस्ट है उस नाल ये भी लिखिया हुंदा है फाइनली डिवाइडेड निकल यानी निकल फाइनली डिवाइडेड निकल इस तरह लिखा हुंदा है ना सो इसका मतलब कि फाइनली डिवाइडेड का मतलब की है कि पाउडर बन जाएगा जो तो पाउडर का सरफेस एरिया सब तो ज़्यादा होंगे और सरफेस एरिया वधन के नाल ज़्यादा मॉलीक्यूल इनके सरफेस के कॉन्टैक्ट के आएंगे तो उस नाल एफिशिएंसी रिएक्शन की बहुत ही हाई होंगी है सो दैट्स वाई दीज कैटालिटिक रिएक्शंस दे डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द कैटालिस्ट जस्ट लाइक नॉर्मल कैटालिसिस कैटालिटिक रिएक्शंस दे आर also very specific in nature और specificity ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ find out ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ by taking example of the reaction the decomposition of formic acid to give
H2 or carbon monoxide or H2 plus carbon dioxide. If we take this reaction, in the first reaction A, it is dehydration क्योंकि water निकल रहा है, and in the second reaction क्योंकि hydrogen gas evolve हो रही है, तो this is actually dehydrogenation. ठीक है, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵੇਪਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਪਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਲੂਮੀਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, एल्यूमिना, तो एल्यूमिना तुहानू पता है कि वाटर एब्जॉर्ब करता है, सो डीहाइड्रेशन जी है ये वाला रिएक्शन मेनली होएगा। और अगर असी रिएक्शन करांगे जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस के विच, मैटल का ऑक्साइड है, तो ये रिडक्शन करेगा, मतलब इसकी रिडक्शन हो जाएगी हाइड्रोजन के नाल, सो ये हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा, तो डीहाइड्रोजनेशन इज द मेन रिएक्शन। सो एल्यूमिना अगर असी ऐड करांगे तो डीहाइड्रोजनेशन वाला रिएक्शन ने नू ही कैटलाइज नहीं करेगा, सिर्फ डीहाइड्रेशन करेगा। And zinc oxide catalyst will catalyze only the dehydrogenation reactions and not dehydration reaction. ठीक है, सो इस तरह ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ स्पेसिफिसिटी ਨੂੰ स्पेसिफाई कर सकते हैं। और सरफेस कैटालिसिस ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ अगर मैं दसा कि किस तरह स्टेप्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बुक ਚੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ बेटा। ਇਹ सो ਜਦੋਂ भी गैशियस फेस विच या लिक्विड फेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਔਰ ਸੋਲਿਡ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੈਟਾਲਿਸਟ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈਟਿਸ ਡਿਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸਾਈਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਕੇ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਟਿਵ ਸਾਈਟਸ। और इस दे विच लेट अस से कि एक कैटलिस्ट का सरफेस है जिस ट्रायंगल्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ एक्टिव साइट्स ਨੂੰ शो किया है विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल्स। तो फर्स्ट स्टैप की होएगा जो असी लेट अस से कि गैशियस फेज है, हाइड्रोजनेशन की गल कर रही मैं, एल्कीन प्लस हाइड्रोजन टू फॉर्म एल्केन। सो सपोज ये मैटल जो है निकल मैटल है या प्लैटिनम मैटल है, ये इस सरफेस से एक्टिव साइट्स है। तो सब तो पहले की होएगा जो असी गैस चैंबर दे विच जिथे कि असी इथलीन भी ऐड की हुई और हाइड्रोजन भी और कैटलिस्ट ऐड कर दिता, तो फर्स्ट इज कि जो गैस मॉलिक्यूल्स ने दे कम टू क्लोज टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, सॉलिड कैटलिस्ट। तो किस तरह आने के सरफेस के ऊपर आफ्टर डिफ्यूजन, क्योंकि गैसेस के एक दूसरे मिक्स हुई हुई हैं, तो डिफ्यूज होके है ना बाकी मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करके वो ही मैटल के सरफेस ऊपर आके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सो पहले तो डिफ्यूज हो रहे हैं गैस फेज विचों, जो सोल्यूशन है तो सोल्यूशन के विचों ही मॉलिक्यूल डिफ्यूज होकर आ रहे हैं नीयर टू द कैटलिटिक सरफेस एक्टिव साइट्स। अगले स्टैप विच उस सरफेस के ऊपर आके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं होता, ए डी है ना, एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स सरफेस के ऊपर बल्क इसका इंक्रीज हो जाएगा। सो देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गया, इथिलीन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गया। उस तो नेक्स्ट स्टैप के विच की होएगा कि जो रिएक्टेंट्स ने उन्हां दे कुछ बॉन्ड्स वीक हो जाएंगे और कुछ नए बॉन्ड्स बनने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह कि सानू पता है इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एक एटम इस कार्बन से अटैच होएगा, दूसरा एटम दूसरे कार्बन से अटैच होएगा, तो इसका आपस का बॉन्ड ब्रेक होना है। सो यू कैन सी कि ये बॉन्ड पहले वीक हो गया, उसके बाद ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होके इस नाल कार्बन नाल नवे बॉन्ड बनने स्टार्ट हो गए हैं। सो इत्थे नवे बॉन्ड बन के कंप्लीट प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बन गया। सो ये दो स्टैप्स विच की हो रहा है कि कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे और कुछ नवे बॉन्ड्स बन गए ने। सो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। तो इस स्टैप नूं असीं केमिकल केमिजॉर्प्शन कहने हैं, क्योंकि इस एड्जॉर्प्शन भी हुई हुई है और केमिकल रिएक्शन भी होया हुआ है। जो एक बार प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बन जाएगा उसके बाद प्रोडक्ट मॉलिक्यूल विल डिफ्यूज अवे फ्रॉम द रिएक्टेंट सरफेस, इस सरफेस तो डिफ्यूज होएगा, ठीक है, डिफ्यूज होके वो बाहर चले। पहले तो डिजॉर्प्शन होगी, जिसमें इतने एड्जॉर्प्शन हुई सी, इतने डिजॉर्प्शन होगी। जिमें इतने होया सी कि इट इज कमिंग टूवर्ड्स द मेटल सरफेस, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द मेटल सरफेस। सो ये दो स्टेप्स जोड़े है सीक्वेंस वाइज उसी तरह से ऑपोजिट हो जाएगा। सब तो पहले नज़दीक आए सी, इतने दूर जा रहा है, इतने नज़दीक आके ये एड्जॉर्ब हो गया, तो इतने ये डिजॉर्ब हो रहा है। और ये मेन जो स्टेप है दो डायग्राम की फॉर्म ਨਾਲ शो किया हुआ है कि बॉन्ड वीक हो रहे हैं और नवे बॉन्ड बन गए हैं, केमिजॉर्प्शन जिसनों कह रहे हैं।
दिस इज एक्चुअली द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रेट इस स्टेप पे डिपेंड करता है और इस स्टेप दे विच भी रेट किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ द एक्टिव साइट्स कवर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। कितनियां एक्टिव साइट्स द पार्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने कवर कर लिया है थ्रू एडजॉर्प्शन। लेट अस से कि इज इट अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 साइट्स है एक्टिव साइट्स, ठीक है, और 80 मॉलिक्यूल्स ਅਸੀਂ ऐड किए हुए रिएक्टेंट से, तो रेट इंक्रीज हो जाएगा अगर ਅਸੀਂ रिएक्टेंट होर ऐड कर देंगे क्योंकि हजे एक्टिव साइट्स ज़्यादा पईयां ने। ठीक हो गया। बट एक बार अगर जो एक्टिव साइट सारियां कवर हो गई, लेट अस से ਅਸੀਂ 120 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिते रिएक्टेंट से या उस 160 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिते रिएक्टेंट से, तो उस नाल जिहड़ा रेट है वो इंडिपेंडेंट होएगा। सो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इफ all the active sites they are covered by the reactant molecules। जो सारी एक्टिव साइट्स कवर हो गया उस वास्ते रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जिन्ना मर्जी नंबर बढ़ा दिए रेट इंडिपेंडेंट होएगा। बट अगर असी एक्टिव साइट्स की गल करिए तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव साइट्स कवर्ड। अगर एक्टिव साइट ज़्यादा कवर होंगे नेचुरली उत्थे रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन ही उत्थे होना है तो रिएक्शन फास्ट होएगा, मोर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। अगर एक केस विच फ्रैक्शन 0.6 है और एक केस विच 0.8 है तो नेचुरली इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी लार्ज अमाउंट। इस जो प्रोडक्ट बनेगा वो कंपेरेटिवली स्मॉल अमाउंट होगी। ठीक है। सो जिन्नी एक्टिव साइट्स ज़्यादा कवर होंगे उतना ही प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। सो दैट इज द काइनेटिक्स ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शंस। और इस एग्जाम्पल्स बहुत ही क्लियर है। एक तो मैं दस दी है इथिलीन प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी कैटलिस्ट पा सकते हो, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, और इतने एल्केन बन गया। और मैं वही तुम बार बार रिएक्शन दसनी है ताकि तुम याद हो जाए। नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस विद आयरन एज अ कैटलिस्ट, और ये रिएक्शन भी तुम बहुत बार दसिया हुआ दिस इज हैबर्स प्रोसेस, और इस दे विच आयरन कैटलिस्ट है टू फॉर्म अगेन अमोनिया एज अ प्रोडक्ट। इसी तरह तुम मैं एक होर रिएक्शन दसिया सी कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस to give sulfur trioxide gas. Again the reaction is carried out in presence of platinum or vanadium pentoxide, the presence which a catalyst act करेगा। So इन सारे केसेस विच गैसियस फेज दे विच है और कैटलिस्ट जो है दैट इज इन द सॉलिड फॉर्म। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक कैटालिटिक रिएक्शंस। और इस तो बाद साडा नया चैप्टर स्टार्ट होएगा, और जो नया चैप्टर है दैट इज सॉल्यूशंस। आई थिंक ये चैप्टर तुसी +2 लेवल ते भी किया होया सॉल्यूशंस का चैप्टर, जिसे तुसी रॉल्ड्स लॉ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़िया सी। सो इस जो नवा असी चैप्टर स्टार्ट करना है उसका नाम है सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। ये नया चैप्टर है। अराउंड 70 to 80% चैप्टर वही है जो तुसी +2 लेवल ते किया हुआ है। चैप्टर नाम देखो की है सॉल्यूशंस। असी इस चैप्टर में सॉल्यूशंस बारे पढ़ना है। ठीक है। और सॉल्यूशंस की होंगे आप डिटेल विच पढ़ांगे। सॉल्यूशन तो बाद असी गल करांगे स्पेशली नॉट सिंपल सॉल्यूशंस और कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशंस। वी हैव मेनली आर फोकस ऑन द डाइल्यूट सॉल्यूशंस। और डाइल्यूट सॉल्यूशंस दे विच भी असी किस कॉन्टेक्स्ट विच पढ़ रहे हैं इन्हां सॉल्यूशंस नो in context to its colligative properties, क्योंकि colligative properties जिहड़ी है they are characteristic of dilute solutions only। so ਅਸੀਂ solutions ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हैं इस चैप्टर विच। किहड़े solutions हो गए? dilute solutions। और dilute solutions भी किसकी गल कर रहे हैं? colligative properties ਦੀ। ठीक है। सब तो पहली गल ਅਸੀਂ solution ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हैं तो what is a solution? तो solution जो है सब तो पहले गल कर तुसीं हमेशा ध्यान रखना है it is a homogeneous mixture
जिसे ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲੀ ਨॉन ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ। जिस तरह की लेटर से ऐसे सोडियम क्लोराइड है और वाटर है ना, ये सॉलिड है, ये लिक्विड फॉर्म च है, तो साडे कोल की बन जाएगा सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन असीं करने बन जाता है। तो इस दे सोडियम क्लोराइड की कंपोजिशन नहीं चेंज होएगी, मीनस इट डज नॉट रिएक्ट कैमिकली विद वाटर, सिर्फ ये वाटर दे विच डिजोल्व होता है और जिहड़ा साडे कोल नवा मटीरियल बनेगा वो होमोजीनियस होएगा। होमोजीनियस मीनस थ्रू आउट द सोल्यूशन concentration of this sodium chloride that remains constant। ये नहीं है कि कितने सोडियम क्लोराइड की अमाउंट ज़्यादा है, कितने सोडियम क्लोराइड की अमाउंट घट है। ठीक है, जिस तरह अगर ਅਸੀਂ सैंड ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੈਂਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਐਕੁਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, सस्पेंशन बनेगी। और पार्टिकल का साइज क्योंकि बड़ा है तो ऑब्वियस है सैंड थोड़ी देर तक तो हैंग ओवर रहेगी वाटर दे विच, जितनी देर हो रोटेट कर रही है असी या उसमें हिला रहे हैं, शेक कर रहे हैं, बट थोड़ी देर बाद अपने आप नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। सो नीचे की होगी सैंड की अमाउंट ज़्यादा है, ऊपरले पार्ट भी सैंड की अमाउंट घट है। सो दिस इज नॉट होमोजीनियस मिक्सचर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंड इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, सो इट इज़ नॉट ए सोल्यूशन। सो ये असी या शुगर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ऐड करते वाटर दैट इज अ सोल्यूशन। ठीक है, और सोल्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ अगेन डिपेंड करता है कि किन्ने कंपोनेंट्स ने। अगर दो कंपोनेंट्स ने जो कि इस चैप्टर ਵਿੱਚ मेनली पढ़ना है, दैट इज नोन एज बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, सो द सोल्यूशन विच कंटेन टू कंपोनेंट्स इज नोन एज बाइनरी सोल्यूशन। और बाइनरी सोल्यूशन ਵਿੱਚ दो कंपोनेंट ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਏ, 100 ml ਹੈ, 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 20 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਐਕੁਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਪੂਰਾ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਅਮਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਵੇਰੀਡ ਅਪ ਟੂ ਅ ਸਰਟਨ ਲਿਮਿਟ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਿਟਸ ਹੈ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਫ one component is taken in small amount as compared to the other, then we can define components as solute and solvent. The component which is taken in small amount is known as solute, and the component which is present in large excess is known as solvent. ठीक है, in general ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ solvent ਜੋ ਹੈ that is लिक्विड और सल्यूट सॉलिड ਹੁੰਦਾ है, पर ये जरूरी नहीं है, हमेशा ही इस तरह नहीं ਹੁੰਦਾ कि सल्यूट सॉलिड होवे ते सॉल्वेंट लिक्विड होवे। ये भी हो सकता है कि सल्यूट जो है वो लिक्विड है और सॉल्वेंट सॉलिड है। ठीक है, उल्ट भी हो सकता है, बस सिर्फ ये देखना कि ज़्यादा केड़ी चीज़ पाई है और घट केड़ी पाई है। ठीक हो गया। हुण अगेन डिपेंड करता है कि लेट अस से कि सल्यूट जो है वो सब तो पहले सॉलिड है, तो सॉल्वेंट इज ए कॉरस्पॉन्डिंग सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस फॉर्म विच हो सकता है। ठीक है, इसे तीन पॉसिबिलिटीज हो गया। इसी तरह अगर सल्यूट लिक्विड है तो सॉल्वेंट सॉलिड लिक्विड and gas form which हो सकता है। Similarly, if solute is in the gaseous form, we can have solvent in the solid, liquid and gaseous form. So technically अगर आप देख देता 9 साढ़े को possibilities और possible है, possibilities नहीं, but ये वाली ਜਿਹੜੀ possibility है solute and solvent both are in the solid form, तो obviously इस केस में साढ़े को homogeneous mixture नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि सॉलिड ने दोनों, तो ये नहीं हो सकता कि थ्रू आउट कंपोजिशन एग्जैक्टली सेम होवे। सो दिस कैन नॉट बी अ सॉल्यूशन, सो ये सॉल्यूशन नहीं होएगा। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। सो इसका मतलब की है
आम तौर ते सॉलिड ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਹੈ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋਵੇ ਬਟ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੋਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੌਂਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਨ ਜਨਰਲ ਰੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਔਰ ਸੋਲਿਡ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਈਨਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਅਮਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਅਮਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋਲਿਊਟ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜੋ ਟਰਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ means we are mainly telling what amount of solute is present in what amount of solvent. So what amount जो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं that can be expressed either in case of grams or in case of milliliter. ਅਸੀਂ ਉਹ weight wise ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ volume wise ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ even ਅਸੀਂ number of moles ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਇਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟਰਮਸ ਟੂ ਡਿਪਿਕਟ ਔਰ ਟੂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਦ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਆਲਰੇਡੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਾਈ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ हाँ जी बेटा विच सैशन कट गया सी शायद कोई नैटवर्क इशू है आई थिंक जिन्ना मैं बोलिया तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया होएगा ਜਾਂ अपना कुछ पार्ट मिसिंग है तुहानू एनीवन ओके ठीक है बेटा सो ये पार्ट क्योंकि ऑलरेडी तुसी बहुत किया होया मैं जस्ट तुहानू एक ब्रीफ दस रही हूं different concentration terms are there जिस तरह percentage by mass that is the mass of solute what mass of solute is present in 100 gram of solvent तो इस तरह से solvent the amount fix कर देती ठीक है solvent the amount fix करती और solute की कितनी amount है in terms of masses only so that is percentage by mass जिस तरह कि अगर लिखा हुआ 10% by mass ठीक है solution of let us say sodium chloride in water सो ये जरूरी नहीं है कि अगर वाटर लिक्विड है तो इसका वॉल्यूम ही होएगा इसका ਅਸੀਂ मास भी ले सकते हैं सो 10% का मतलब क्या हो गया कि 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन ये सिर्फ ध्यान रखना थे 100 ग्राम सोल्यूशन है सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सो टोटल वेट है सोल्यूशन का 100 ग्राम विच 10 ग्राम सोल्यूट है ऑब्वियसली ਅਸੀਂ कह सकते कि 90 ग्राम वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेजेंट है ठीक है सो वेट ਅਸੀਂ क्लियर कह सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर और इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इसी तरह ਸਾਡੇ ਕੋਲ अगली डेफिनेशन हो सकती है परसेंटेज बाय वॉल्यूम so we can have percentage by volume ठीक है सो परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मतलब की है what volume of solute is present in 100 ml of solution so इत्थे फिर साडे कोले टर्म solution ही आएगी ये ध्यान रखना है so 10% by volume solution of alcohol
इन वाटर, अगर सानू दसता है 10% बाय वॉल्यूम, अल्कोहल इन वाटर दोनों ही लिक्विड है, इट मीन्स 10 ml अल्कोहल है इन 100 ml वाटर। ठीक है, बट ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वाटर कितना, सॉरी नॉट वाटर, सोल्यूशन, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि वाटर कितना होएगा 90, ये जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना है। वेट भी क्लियर है कि 100 ग्राम टोटल है, 10 ग्राम सल्यूट है तो 90 ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा। बट अगर ਅਸੀਂ वॉल्यूम्स ले रहे हैं, टोटल वॉल्यूम 100 ml है, सल्यूट 10 ml है, बट इट डजंट मीन कि सॉल्वेंट 90 ml होएगा, क्योंकि ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨॉन ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ कि 10 + 90 मिलके जरूरी नहीं कि 100 बनान, इट मे बी लिटिल बिट लेस देन 100 और मे बी मोर देन 100। तो तुसी पढ़िया है रॉल्स लॉ वाले सॉल्यूशंस ਜਿਹੜੇ कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ਹੁੰਦੇ ਨੇ शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, वो ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। सो इसी तरह ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਟਰਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ की है वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ग्राम्स ਦੇ ਵਿੱਚ इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ml ਚ ਕਹਿ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਲੀਟਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਹੈ मोलैरिटी, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, ये सारियां ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਰਮਸ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਈਓ ਜ਼ਰੂਰ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता लगेगा ਆਪਾਂ क्लास ਜ਼ਰੂਰ डिस्कस करांगे। मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ आम तौर ਤੇ x ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। x1 is mole fraction of first component, x2 mole fraction of another component, or for binary solution mole fraction of one component and mole fraction of second component, sum total is equal to 1। and for n component system जिन्ने component है, sum total of mole fraction of all the components is equal to 1, क्योंकि फ्रैक्शन सारे ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 0.2 ਹੋਵੇ, ਇਹ 0.4 ਹੋਵੇ, 0.1 ਹੋਵੇ, 0.3 ਹੋਵੇ, है ना, इस तरह हो सकता है, तो टोटल हमेशा ही 1 होएगा। ठीक हो गया। इस तो बाद साडे कोल एक टर्म हुंदी है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। सो इसका मतलब की है कितने पार्ट्स है। सब तो पहला टर्म हुंदा है सोल्यूट ਲਈ, अनदर टर्म जो अगली टर्म आती है वो साडे कोल हुंदी है सॉल्वेंट ਲਈ या सोल्यूशन ਲਈ। सो इसमें ਅਸੀਂ डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, dissolved, और we can say present in million part का मतलब है 10⁶ parts of solution। सो आम तौर ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਨ ਜਨਰਲ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ वेट यूज करते हो। ये आम तौर पर होंगे आयनिक कंपाउंड्स लिए यूज करते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर NaCl ही नहीं होंगी, उसके तुहानू पता है NaCl के नाल NaCl है ना, NaCl। सो इस तरह 3 डायमेंशनल लैटिस होंगे, इस तरह ही करके सारे डायमेंशन XYZ डायमेंशन 3 डायमेंशन लैटिस होंगे। तो इसमें सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होंगे, तो इस जो फॉर्मूला रिपीट हो रहा है वो है NaCl। तो ये फॉर्मूला यूनिट हो गया इसमें, दिस इज फॉर्मूला यूनिट, और इस फॉर्मूला यूनिट का जो मास होंगे है उसमें असीं फॉर्मूला वेट कहते हैं। सो उसके उपर जी साडे कोल टर्म है दैट इज नोन एज फॉर्मैलिटी। ठीक है, सो ये सारे टर्म्स ने एक जरूर तुसीं पढ़ियो, कई बार इस रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ जाता है एग्जाम के। सो कल असीं करांगे इस अगला